آج صبح ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ فضل اور یہ موقع ہمیں ایک بار پھر سے عنایت کیا کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ پچھلے چند ایک مہینوں سے ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس دوران میں ہم نے 7 کلیسیاؤں کے پیغام کو جو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا عارف کی معرفت دیا اسے سیکھا۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے باب میں ہم ان چیزوں کا ذکر دیکھتے ہیں جو تھی اور جو موجود ہیں، لیکن جب ہم چوتھے باب کا آغاز کرتے ہیں تو تمام چیزیں ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ تمام باتیں جو خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے ساتھ کر رہے تھے، ہمیں ان کے درمیان ایک وقفہ اور پھر ایک نئے دور کی شروعات نظر آتی ہے۔ اور جب ہم چوتھے باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا۔ ان تمام باتوں کے بعد جو کلیسیا کے ساتھ اس زمین پر رونما ہوئی ہیں، جو کلیسیا نے برداشت کی ہیں، وہ رومی اعزاز ثانی اور اس کے بعد جتنی اعزاز ثانیاں چرچ پر یا کلیسیا پر آئیں، جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر برداشت کی ہے، خدا کا بندہ یوحنا ایک اور چیز دیکھتا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے ایک دروازہ آسمان پر کھلا ہوا دیکھا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس بات کے بارے میں یاد دلاتی ہے کہ کلیسیا بے شک اس زمین پر دکھ اٹھاتی ہے، کلیسیا ایماندار بے شک اس زمین پر رہتے ہوئے پریشانی کا شکار ہیں، اعزاز ثانی کا شکار ہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے وہ دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن خدا نے آخر میں اس کے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ اور خدا کلیسیا کو، خدا ایمانداروں کو ہرگز اس زمین کی مشکل میں اور اس زمین پر رہنے نہیں دے گا۔ اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، یعنی وہی شخص جو پہلے باب سے لے کر تیسرے باب تک یوحنا عارف سے ہم کلام ہے، کلام کر رہا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہی شخص یعنی خداوند یسوع مسیح۔ اور یہ دروازہ کھولنے والا، اس اعزاز ثانی کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اور لکھا ہے جس کی آواز کس کی مانند تھی؟ نرسنگے کی مانند۔ اور اس کا ذکر ہم نے پہلے باب میں بھی پڑھا، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جس کی آواز نرسنگے کی مانند ہے۔ اور جب ہم نرسنگے کی بات کرتے ہیں تو نرسنگا جب پھونکا جاتا تھا تو اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ قوم ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے۔ جب نرسنگا پھونکا جاتا تھا تو لوگ جو ہے جس تک اس نرسنگے کی آواز پہنچتی تھی وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس جگہ پر
पहुंचता जहां पर नरसिंगा फूंका गया है। यहां पर लिखा है कि उसकी आवाज नरसिंगे की मानद है, यानी वो दुनिया को और दुनिया के ईमानदारों को और कलीसिया को इकट्ठा करता है। और लिखा है मैंने एक दरवाजा खुला हुआ देखा है, और फिर आगे लिखा है वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा। कहां आ जा? जरा मेरे साथ रहिएगा, इन बातों को थोड़ा सा हम दोबारा से दोहराएंगे। लिखा है कि मैंने इन बातों के बाद, यानी जो चीजें कलीसिया के साथ रूनुमा हुई है, जो बातें कलीसिया के साथ जो है वो खूबजीर हुई है, उन बातों के बाद मैंने आसमान के अंदर एक दरवाजा खुला हुआ देखा है। और हम स्तिफनस को जब देखते हैं अमाल की किताब में, तो वहां पर भी जब उसे संसार किया जा रहा है, जब उसे मारा जा रहा है मसीही ईमान की वजह से, तो वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं और खुदावंद यीशु मसीह को बाप के तख्त के दाहिनी तरफ देखता हूं। और यहां पर भी खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना वो कहता है कि मैंने आसमान पर जब निगाह की है तो एक दरवाजा खुला हुआ है, और वो शख्स जो पहले कलाम कर रहा था, यानी खुदावंद यीशु मसीह, और जिसकी आवाज नरसिंगे की मानद है, वही हम कलाम है। और उसने कहा यहां ऊपर आ जा। कहां पर आ जा? अब यहां पर बहुत सारे उलमा, बहुत सारे आलम वो मुख्तलिफ तशरीहात इस आयत की करते हैं, और खास तौर पर इन अल्फाज की कि यहां ऊपर आ जा। लेकिन जब हम आखिर में इन तमाम बातों का लबे लबाब निकालते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि कलीसिया को खुदा इस दुनिया में जो कृत हो चुकी है, जो नाराज हो चुकी है, यहां पर रहने नहीं देगा। इसकी जितनी भी तशरीहात की जाए, इसकी जितनी भी इंटरप्रिटेशंस की जाए, इसका एक ही लबे लबाब है, एक ही मानी है कि खुदा कलीसिया को यहां पर रहने नहीं देगा। आमीन। शायद हम इस जमीन पर रहकर दुख उठाते हैं, जिस्मानी रूहानी तौर पर इस मुल्क में रहते हुए अपने ईमान की वजह से, लेकिन कलीसिया के पास एक आखिरी उम्मीद है, और वो उम्मीद कभी खत्म होने वाली नहीं है कि खुदा वो हमें यहां रहने नहीं देगा। खुदा ने एक हमारे लिए अल्टीमेट प्लान किया हुआ है, और वो प्लान हमेशा की जिंदगी का है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। क्या करता हूं तुम्हारे लिए? यहां पर लिखा है कि यूहन्ना को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कहां आ जा? यहां ऊपर आ जा। और वो कहां पर था? वो पतमस के जजीरे के अंदर था, जहां पर कैद की हालत में, जहां पर मुश्किल है, जहां पर परेशानी है, जहां पर ना उम्मीदी है, जहां पर पत्थर तोड़ना है, जहां पर मेहनत है, जहां पर मुशक्कत है। लेकिन खुदा ने उसे कहा कि तू यहां ऊपर आ जा। उसे उन मुसीबतों में से निकाल लिया है, उस कैद में से निकाल लिया है। और जब वो ऊपर गया है तो खुदा का कलाम फरमाता है मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूरी है। पहले कौन सी बातें थी? जो थी, जो हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो पहले बाप में कलाम करने का आगाज करता है, तो वो उसे बताता है कि इस वक्त कलीसिया किन हालात में से गुजर रही है, कलीसिया किन मुश्किलात में से गुजर रही है, रोमी लोग उन पर कैसी एजाज़सानी कर रहे हैं। खुदा उनको बताता है कि मैं तुम्हारी मुश्किलात से वाकिफ हूं, मैं इस बात से वाकिफ हूं कि तुम यहूदियों के हाथों दुख उठाते हो, लेकिन यहां पर लिखा है मैं अब तुझे वो बातें दिखाऊं जो होने वाली है। शायद पहली बातें वो नाउमीदी की हैं, पहली बातें वो मुश्किल की हैं, पहली बातें वो परेशानी की है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसे अपना अल्टीमेट प्लान बताना चाहते हैं कि मैं ईमानदार के लिए क्या करना चाहता हूं। और लिखा वो बातें दिखाओ जो इसके बाद होने वाली है।
और वो कौन सी बातें? लिखा है, फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है। आसमान पर क्या है? आसमान पर क्या है जी? एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। बुनियाद, तमाम मखलूकात का सेंटर, जो आसमान पर जाकर जब वो रूह में आ गया तो सबसे पहली चीज जो देख रहा है वो तख्त है, और तख्त के ऊपर कोई बैठा है, और वो खुदा है। वो खुदा जिसने आसमान और जमीन की बुनियाद को रखा है। और लिखा है कि वो तख्त पर क्या हुआ है? बैठा हुआ है। और फिर हम जब इसके आगे पढ़ते जाते हैं तो हमें एक आसमानी हिरारकी वहां पर नजर आती है, आसमानी मखलूकात हमें नजर आती है, लेकिन हम इस तमाम जो है वो बातों का जो सेंटर देखते हैं वो खुदा का तख्त है, और खुदा अपने तख्त पर बैठा हुआ है। और यही हकीकत है, यही जमीन और आसमान की हकीकत है कि खुदा अपने तख्त पर मौजूद है। आज बहुत सारे वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, वो ये दावा करते हैं कि कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो आसमान और जमीन को चला रही है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि एक शख्स है जो तमाम मखलूकात का खालिक है, तमाम मखलूकात का मालिक है, और वो खुदा है। और खुदा अपने तख्त पर मौजूद है, जहां से वो दुनिया के इंतजाम को चलाता है, जहां से वो ईमानदारों को देखता और ईमानदारों के लिए राहें तैयार करता है। और लिखा है कि मैंने एक तख्त जो है वो देखा है, और ये आसमानी हकीकत है कि खुदा अपने तख्त पर मौजूद है। और लिखा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशीब और अकीक सा मालूम होता है। कैसा मालूम होता है? संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। ये दो पत्थर है, इसको अंग्रेजी जुबान में संगे यशब को जैस्पर और अकीक को सरदीन जो है वो कहा जाता है। और बनी इस्राइल कौम के अंदर, और खुदा ने जब बनी इस्राइल कौम को शरीयत दी तो उसके अंदर ये दो पत्थर बड़ी अहमियत के हामिल थे। जो संगे यशब है, जो लिबास सरदार काहिन पहना करता था, तो सरदार काहिन के सीने पर एक सीना बंद मौजूद होता था जिस पर 12 पत्थर मौजूद होते थे। कितने पत्थर होते थे? 12 पत्थर, जो खुदा ने हुक्म दिया था कि जब सरदार काहिन वो मेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानने के लिए आए तो उस लिबास को पहने, और उस लिबास का जो सीना बंद है उस पर ये 12 पत्थर जो है वो मौजूद हो। और जो पहला पत्थर हुआ करता था वो संगे यशब, जो पहला पत्थर था, और ये पत्थर जो था ये एक शफाफ पत्थर था। और ये पत्थर जो है वो खुदा की पाकीज़गी को और खुदा की अलूहियत को ज़ाहिर करता था, खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करता था, खुदा की अथॉरिटी को ज़ाहिर करता था। और इसके बाद जो दूसरा पत्थर जो है वो यहां पर जिसका जिक्र है उसका नाम है अकीक। और जो अकीक हुआ करता था, जो सरदार काहिन का सीना बंद होता था, उसमें जो आखिरी पत्थर होता था वो अकीक का पत्थर होता था। और ये लाल पत्थर होता था जो खुदा की निजात बख्श कुदरत को ज़ाहिर करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो शख्स तख्त पर बैठा हुआ है
وہ संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, यानी उसके अंदर पाकीज़गी है, उसके अंदर हॉलीनेस है, उसके अंदर इलाही रूह है, और फिर उसके अंदर निजात बख्श कुदरत मौजूद है। और इसके बाद ये दो पत्थर खुदा के अव्वल और आखिर होने को भी ज़ाहिर करते हैं। जो पहला पत्थर था वो संगे यशब, वो पहला पत्थर था जो उस सरदार काहिन के सीना बंद पर मौजूद होता था, और उसके बाद जो आखिरी पत्थर था वो अकीक था, यानी खुदा इस बात को ज़ाहिर करता है कि खुदा अव्वल भी है और खुदा आखिर भी है। वही अज़ल से था और वही अब तक रहेगा, वही पहले भी था और आखिर में भी वही है। जो कुछ दरमियान में है वो खुदा की कुदरत के सबब से है, खुदा की निजात बख्श कुदरत जो आज भी हमें लिए फिरती है उसके सबब से है। आमीन। सो ये दोनों पत्थर खुदा की पाकीज़गी, खुदा की अलूहियत और फिर खुदा की निजात को ज़ाहिर करते हैं। और खुदा ये बात ज़ाहिर करना चाहता है, बताना चाहता है कि इंसान के लिए निजात खुदा की तरफ से है। आमीन। और फिर उसके बाद लिखा है हकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द जुमरद की सी एक धनक मालूम होती है। उस तख्त के चौगिर्द क्या है? जुमरद सी एक धनक जो है वो महसूस हो, मालूम जो है वो होती है। धनक जो है ये कोसे किज़ा को कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर रेनबो, यानी उस तख्त के चौगिर्द जो है वो कोसे किज़ा जो नूह ने जब वो कश्ती से बाहर आया है उसे देखा है। और हम सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें ये बात बताती है कि ये खुदा के अहद का निशान है। कौसे किज़ा क्या है? खुदा के अहद का निशान। जब खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा था तो उस अहद के निशान के तौर पर खुदा ने कौसे किज़ा जो है रेनबो वो नूह को दिखाया था। और यहां पर लिखा है कि उस तख्त के चौगिर्द क्या है? जमरद की सी धनक है, वहां पर रेनबो है, वहां पर कौसे किज़ा। याद रखिए खुदा अपने अहद के अंदर रहकर हमारे साथ वफादार है। इस बात को समझिएगा, अगर खुदा अपने अहद से जो उसने हमारे साथ यीशु मसीह के वसीला से बांधा है उससे बाहर आकर वो हमसे हम कलाम होता है तो हम उसकी निजात और उसकी अदालत का सामना नहीं कर सकते। वो अपने अहद के अंदर रहकर हमारे साथ अपनी वफादारी दिखाता है। और ये मेरे और आपके लिए एक उम्मीद है, मेरे और आपके लिए खुदा का फजल है कि खुदा अपने अहद के अंदर मौजूद है। अगर वो अहद के अंदर हो ना हो तो हम उसकी अदालत का सामना नहीं कर सकते। अगर वो अपने अहद के अंदर ना हो, वो कवनेंट जो मसीह यीशु के वसीला उसने हमारे साथ बांधा तो हम उसका सामना नहीं कर सके। जब मूसा ने उससे कहा, तो मूसा के बारे में लिखा उस जैसा नबी और कोई बनी इस्राएल कौम में नहीं आया। जब मूसा ने खुदा से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं तो खुदा ने क्या कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता। लेकिन जब यूहन्ना जाता है तो यूहन्ना क्या देखता है? तख्त और तख्त पर बैठे हुए शख्स को देख रहा है। क्यों? अब वो उस अहद के अंदर शामिल हो गया। जब हम खुदा के अहद के अंदर शामिल है तो हम निजात याफ्ता भी हैं और खुदा के फजल के वसीला से खुदा के तख्त के सामने खड़े रहने की जिसारत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में नहीं है या उसके अहद के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर हम खुदा की उस अदालत का सामना
نہیں اتر سکتے، خدا کے انصاف کے تقاضوں پر ہم پورا نہیں اتر سکتے۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس کے تخت کے چوگرد کیا ہے؟ زمرد کی سی ایک دھنک ہے، رینبو ہے، جو اس کے عہد کو ظاہر کرتی ہے۔ سو خدا پاک ہے، اس نے ہمیں پاک بنایا، اپنے عہد کے اندر شامل کیا اور اپنے عہد کے اندر رہ کر ہمارے ساتھ وفادار بھی ہے۔ آمین۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ اس تخت کے چوگرد کیا ہے؟ 24 اور تخت ہیں اور ان پر 24 بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کی پوشاک کیسی ہے؟ سفید پوشاک ہے اور ان کے سروں پر کیا ہے؟ سونے کے تاج ان کے سروں پر موجود ہے۔ ان کی بھی بہت ساری تشریحات کی جاتی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف چلیں، لیکن یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ اس بات کا نشان ہے کہ خدا نے اپنی قدرت کے اندر انسان کو شامل کر لیا ہے۔ آمین۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ ان کا ساتھ دیتا ہے؟ ابراہیم کی نسل کا۔ یہ 24 بزرگ یہ کلیسیا کو ظاہر کرتے ہیں، پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کے بزرگوں، اور ان کا وہاں پر موجود ہونا، خدا کے تخت کے سامنے ہونا، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے تخت کے سامنے جگہ دی ہے۔ خدا نے ایمانداروں کو اپنی قدرت کے اندر شامل کیا ہے، خدا نے اپنے جلال کے اندر ایمانداروں کو شامل کر لیا ہے۔ اور یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آج کا چرچ، آج کی کلیسیا بے شک اس زمین پر دکھ اٹھاتی ہے، بے شک اس زمین پر مسائل کا سامنا کرتی ہے، مارے جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، کئیوں کو ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، لیکن جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے اور ان کے سروں پر سونے کے تاج جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی خدا جب یوحنا کو اوپر بلاتا ہے وہ کہتا ہے میں وہ باتیں تجھے دکھاؤں جو ہونے والی ہیں، تو یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے کہ کلیسیا خدا کے تخت کے سامنے موجود ہے۔ اور آگے اس کے بعد لکھا ہے اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ کیا جل رہے ہیں؟ آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ ہم نے چراغ کے بارے میں پہلے خدا کے کلام میں سے سیکھ چکے ہیں جب ہم نے مکاشفہ کی کتاب کو جو ہے وہ شروع کیا۔ سو آگے لکھا ہے یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ کتنی روحیں ہیں؟ خدا کی 7 روحیں، اور خدا کی 7 روحوں کے بارے میں بھی ہم نے پہلے جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں کہ یہ 7 روحیں جو ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کے مختلف جو ہے وہ اس کی شکلوں کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ یہ خدا کی مکمل موجودگی کا اظہار ہے۔ 7 روحیں کیا ہیں؟ خدا کی مکمل موجودگی کا اظہار ہے، اور اس بات کا بھی اظہار ہے کہ روح القدس بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تثلیث کو نہیں مانتے۔ یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی 7 روحیں بھی وہاں پر موجود ہے، یعنی خدا کا روح بھی اپنی پوری جو ہے وہ اپنی پوری عقائد کے ساتھ یا اپنے پورے اختیار کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے
और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलूर की मानद है। उस तख्त के सामने क्या है? शीशे का समुंदर है। ये सारी बातें वो हैं जो होने वाली हैं और जो खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना को दिखाई और उससे कहा कि लिख और कलीसियाओं तक पहुंचाई जाए। लिखा है कि उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलौर की मानद है और समुंदर के अंदर क्या होता है? पानी होता है। और जब कोई काहिन या सरदार काहिन खुदा के तख्त के सामने जाया करता था तो उसके लिए जरूरी था कि वो पानी के साथ अपने आप को पाक करे। सो ये खुदा की पाकीज़गी को जाहिर करता है। यहां पर लिखा है कि शिफाफ समुंदर, उसके अंदर कोई और बाहर की चीज शामिल नहीं है, उसके अंदर कोई और चीज शामिल नहीं की गई, बल्कि वो शीशे का समुंदर जो है वो बलौर की मानद जो है वो नजर आता है। सो हमारी पाकीज़गी भी जब हम खुदा के सामने होंगे, खुदा के तख्त के सामने होंगे, तो हमारी पाकीज़गी भी खुदा की मानद होगी। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें अपने अहद के अंदर शामिल करके अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें ये फजल दिया कि हम उसके तख्त के सामने खड़े हो सके। और फिर उसके बाद आगे लिखा, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। इस आयत पर आकर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। आगे लिखा है, पहला जानदार बब्बर की मानद है, दूसरा जानदार बछड़े की मानद, और तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। किसकी मानद है? सो 4 जानदार, ना सिर्फ वो 24 बुजुर्ग जो तख्त पर बैठे हुए हैं, जिनकी पोशाक सफेद है और जिनके सरों पर सोने के ताज रखे हुए हैं, ना सिर्फ वो वहां पर मौजूद है बल्कि 4 जानदार भी वहां पर मौजूद हैं जिनके क्या है? आगे और पीछे आंखें ही आंखें हैं। ये बात इस बात को जाहिर करती है कि खुदा के तख्त के सामने जो 4 जानदार खड़े हैं वो खुदा की अलूहियत के दर्जे को जानते हैं और फिर वो तमाम कायनात की जो परफेक्शन है उसको वहां पर जाहिर करते हैं कि खुदा की हमद जो है वो तमाम तरह की मखलूकात जिन्हें खुदा ने बनाया, जिन्हें खुदा ने तामीर किया है, जिन्हें खुदा ने जो वो परफेक्शन दी है, वो खुदा के तख्त के सामने मौजूद है। जब हम हिस्कियल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर इसने क्रूबीम का नाम भी दिया गया है। सो इनके काम जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। और जब हम तशरीहात को पढ़ते हैं तो उसके अंदर इन्हें फरिश्तों के साथ ही जो है वो दीगर फरिश्ते भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर हमारे लिए इतनी बात जो है वो जरूरी है कि दुनिया और तमाम कायनात की क्रिएचर और तमाम मखलूकात खुदा के तख्त के सामने खुदा की हमद जो है वो करते हैं। आमीन। एक का चेहरा जो है वो बब्बर की मानद, बछड़े की मानद, इंसान की मानद, और फिर लिखा है कि एक का चेहरा जो है वो उकाब की मानद है। और वो सारे के सारे कहां पर मौजूद हैं? खुदा के तख्त के सामने मौजूद हैं। और क्यों मौजूद हैं? ताकि वो खुदा की हम करें। और लिखा है आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावन, खुदा का मतलब जो था और जो है और जो आने वाला है। क्रिएचर, पूरी क्रिएशन
खुदा के तख्त के सामने खुदा की हम करते हैं और वो से कुदूस 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 कहते हैं। और वो कहते हैं जो था, जो है और जो आने वाला है। जब मूसा ने पूछा मैं बनी इस्राएल कौम को क्या जाकर बताऊंगा, मुझे किसने भेजा है? उसने कहा जाकर कह देना मैं जो हूं सो मैं हूं। और ये वही खुदा है जो आदम के साथ भी कलाम करता था, नूह के साथ, इब्राहिम, मूसा और फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ, और फिर वो तख्त पर मौजूद है और उसके सामने तमाम मखलूकात उसकी हम करते हैं, तमाम मखलूकात उसकी तारीफ जो है वो करते हैं और वो कहते हैं जो था, जो है और जो आने वाला है वही खुदा कादरे मुतलक है। और 9वीं आयत में लिखा है और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे। 24 बुजुर्ग क्या हो जाएंगे? खुदा के सामने, खुदा के सामने क्या हो जाएंगे? गिर पड़ेंगे। और आगे लिखा है उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि आए खुदावन हमारे, आए हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। सो इन 24 बुजुर्गों ने क्या किया है? अपने तख्त किसके साथ, अपने ताज किसके सामने डाल दिए? जो तख्त पर बैठा है, यानी खुदा जिसकी प्रस्तिश 4 जानदार करते हैं, उसके सामने झुक गए हैं, उसके सामने गिर पड़े हैं और अपने ताज उसके सामने डाल दिए हैं। इसकी एक मिसाल मैंने कई बार ये बात बताई कि रोम का जो इंतजाम था उसके अंदर एक कैसर था जो रोम के शहर में रहकर पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोल संभालता था। और जब हमने 7 कलीसियाओं के पैगाम को पढ़ा तो वहां पर हमने कई बार इस बात को जाना कि वो जो रोमन एम्पायर था वो अपनी प्रस्तिश के लिए, अपनी इबादत के लिए लोगों को और कलीसिया को मजबूर किया करता था। क्या किया करता था? जरा ध्यान कीजिएगा। जो रोमन एम्पायर था वो कलीसिया को क्यों सताता था कि कलीसिया क्या करे? उसके सामने सजदा करे। असल में उसे यहूदियों से कोई लेना देना नहीं था, ना यीशु मसीह से। असल में जो उसकी तरफ से इजाजत थी दोमितियान की तरफ से, नीरो की तरफ से, वो ये थी, वो चाहते थे कि कलीसिया उनके सामने सजदा करे। वो अपने आप को खुदा जो है वो डिक्लेयर करता था। वो बताता था कि मैं ना सिर्फ बादशाह हूं बल्कि खुदा भी हूं। और उसकी हुकूमत के अंदर, रोमन अंपायर के अंदर जो रियासतें थी, जिस तरह यहूदिया, और जब हम हेरोदिस बादशाह के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारे हाकम थे जो उन्होंने जो है वो सूबों के ऊपर ठहराए थे। और ये हाकम भी अपने आप को बादशाह कहते थे और ये भी तख्त जो है वो ताज जो है वो पहनते और तख्त पर बैठा करते थे। और जब इनकी सालाना जो है वो मीटिंग हुआ करती थी और जब इनकी हायरार्की बैठती थी तो जो रोमन एम्परर था, जो कैसर था, वो एक बड़े तख्त पर बैठता और जितने उसके साथ उसके हाकम होते वो जब उसके सामने आते तो वो अपने ताज उसके सामने डाल देते और इस बात को कबूल करते कि तू ना सिर्फ बादशाह है बल्कि तू खुदा है। खुदा इस बात को यूहन्ना को दिखाकर ये जाहिर करना चाहता है कि रोमन एम्परर जो इब्लीस का नुमाइंदा है वो हकीकी खुदा नहीं है बल्कि हकीकी खुदा वो आसमान पर मौजूद है। और उन 24 बुजुर्गों का अपने ताज उसके सामने डालना इस बात को जाहिर करते हैं कि जो कुछ भी है वो खुदा है, आसमान पर भी
اور زمین پر بھی، اور اس کے سامنے کوئی اور خدا موجود نہیں ہے۔ جب وہ حاکم اکٹھے ہوتے اس کا تاج اس کے قدموں میں رکھنا، وہ ظاہر کرتے تھے کہ جو کچھ ہم ہیں وہ تیری وجہ سے ہیں، لیکن خدا یہاں پر الٹیمیٹ جو اس کا منصوبہ ہے، جو آسمانی منصوبہ ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ نہیں، جو کچھ ہے وہ خدا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھا بھی ہے تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزوں کو پیدا کیا کیا ہے، تو ہی نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ سو یہ اس بات کا اظہار تھا کہ جو کچھ ہے اس زمین پر وہ کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی۔ سارے بولیں کس کی وجہ سے ہے؟ جو تھا، جو ہے، اور جو آنے والا ہے، یہ وہ خدا ہے، اور وہ تخت پر بیٹھا ہے۔ اور آج ہمارے لیے بھی ہمارا مرکز جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے، اس زمین پر اس کا تخت ہونا چاہیے، اور جو تخت پر بیٹھا ہے، جو کریشن اس کے سامنے ہے اس کا مرکز بھی خدا ہے، جو 24 بزرگ اس کے سامنے ہے اس کا مرکز بھی خدا ہے، جو شمعدان وہاں پر پڑا ہے، جو جل رہا ہے، اس کا مرکز بھی خدا ہے۔ اور خدا نہ صرف مرکز ہے، اس نے اپنے آپ کو مرکز بنایا، بلکہ ہمیں اپنے اس جلال میں شامل کیا ہے، ہمیں اپنی اس قدرت کے اندر شامل کیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں ایک دروازہ دیکھتا ہوں جو آسمان میں کھلا ہوا ہے، اور وہ شخص جو پہلے مجھ سے کلام کرتا تھا اس نے کہا تو پر آ جا۔ سو یاد رکھیے، خدا مجھے، خدا آپ کو، خدا ہماری نسلوں کو، اور خدا ہمارے ان ابا و اجداد کو جو ایمان دار تھے، جنہوں نے ایمان کے اندر رہ کر زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اپنی جانیں مسیح کے لیے قربان کی ہیں، خدا ان کو اس زمین پر رہنے نہیں دے گا۔ بلکہ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب 20 22 21 باب کو جب ہم پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ سو خدا نے ہمارے لیے ایک جگہ تیار کی ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا مرکز خدا اور خدا کا تخت ہے۔ سو ہماری لیے ہماری زندگیوں کے اندر اس زمین پر رہتے ہوئے بھی مرکز جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے، خدا کا تخت ہونا چاہیے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔